maximum 1 hour 45 minutes, minimum about 1 hour 30 minutes, 25 minutes or 27 minutes average. These are the things he introduced, and followed by Smart wanted to make something after they come out with an idea where in Kuala Lumpur, the main river of Kuala Lumpur is almost about 10 kilometers from the city. So what happened? They come out with an idea to build, I don't know, very interesting story, this big, okay, it's a very long story, right? Petronas Twin Tower is Kuala Lumpur Tower is a skyscraper, it's a skyscraper, whereas Petronas Twin Tower is iconic. So it's also the inspire of our fourth prime minister. All this comes from the fourth prime minister. So Petronas Twin Tower is an inspire of our fourth prime minister, where the place they construct this Petronas Twin Tower is a race horse that will happen. Finally, he changes my idea, he built a twin tower. Everything has been worked out. The designer, architect is a American Argentine by the name of Casa Pelli. He's Casa Pelli. So at that moment, the currency for Malaysian ringgit per dollar, attack is not a war. Economic crisis happens where our currency falls very bad. So when they plan out the building, the cost of the building has gone up to USD 3 billion because the currency has changed, has gone up. It's keep on going up, where per dollar is going up above 3 ringgit, 3.5, 3.10 is going up. So first, a lot of voices come, but he just ignore it and keep on moving. Second, limestone. With that, of course, they can't do any more construction work. They moved in about 60 meters the status, right? So although it lost the status, but this Petronas Twin Tower holds 3 world records. That is the taller Harrison Cocoa Boutique, the oldest chocolate gallery in Kuala Lumpur, where the chocolate are produced with Malaysian cocoa. All the chocolates over there is 100% Malaysian chocolate. It's a cocoa, 100%. Even dark chocolate about 99%, right? So we can find that. Varieties of chocolate we can find there, such as tiramisu, hot selling chocolate, almond, dark chocolate, ginger chocolate, milk chocolate, coconut chocolate, tiramisu, sesame chocolate, Tongkat Ali is famous chocolate, right? So varieties of chocolate, later we go there. All this chocolate gallery, this chocolate gallery is under the Malaysian Tourist Information Center. That's why they are properties, because it got a therapeutic value. It's good for what? Anybody can guess? Anybody can guess? No. It's good for heart. It's good for heart. You see, in our body, we need some nutrients, correct? A lot of things we are taking, but we don't take something good for the heart. It's avoid skin disease, right? Okay. Tongkat Ali chocolate is over there. Tongkat Ali is one of the famous we can find in the tropical, famous in Malaysia. Tongkat Ali is a tree, it's a root of the tree, which is recognized under World Alternative Medicine. That's the thing. So there they do accept foreign currency. We have a Singapore currency, India currency, dollars, whatever currency they do accept. But my advice, if you have a card, credit card or debit card, you use that. Because currency, of course, melt when we put in our mouth. If you keep in the normal. दोस्तों, ये हमें बस से अब इस चॉकलेट के आउटलेट पे ले आए हैं। दोस्तों, ये हैरिस्टन कंपनी की चॉकलेट है जो मलेशिया में ही ओरिजिन है, यानी कि यहीं के से बनने वाली ये चॉकलेट है। बहुत ही पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही मशहूर है, क्योंकि यह चॉकलेट हैरिस्टन जो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और ये मलेशिया की सबसे बड़ी स्थानीय चॉकलेट प्रोड्यूस करती है। हैरिस्टन चॉकलेट की उत्पादन श्रृंखला में यानी कि पारंपरिक की चॉकलेट है, फ्यूजन करके जितने फलों, जड़ी बूटियों और मसालों के साथ तैयार की गई अनोखी मलेशियाई चॉकलेट और प्रीमियम फाइन चॉकलेट शामिल है। ये अपने जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर, क्वालिटी पर बहुत जोर देते हैं, जिसमें केवल सबसे अच्छे जो कोको बीन्स का इसमें प्रयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। और हैरिस्टन चॉकलेट के लिए जाना जाता है कि अपने अभिनव और अनोखे स्वादों के लिए, जैसे कि
डूरियन चॉकलेट, करी चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और अदरक चॉकलेट। इसने काफ़ी सारे प्राइज इस चॉकलेट ने जीते हुए हैं और इसको मान्यता मिली हुई है, जिसमें यह दक्षिण पूर्व एशिया में रूबी चॉकलेट की शुरुआती जो स्टार्टिंग है इसकी वो शामिल है। हैरिस्टन चॉकलेट के लिए मलेशिया में कई आउटलेट हैं, मतलब लगभग मलेशिया में इसके 6 से ज़्यादा आउटलेट हैं और यह टूरिस्ट के लिए और यहाँ पर टेस्टिंग की भी सुविधा रखी है, तो यहाँ पर इसलिए ये हम लेके आए हैं और सभी ने लगभग कुछ न कुछ थोड़ी बहुत चॉकलेट ली है ताकि इसके स्वाद को चखा जाए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा बताया गया है। और अब हम ये ट्विन टावर के लिए लेके जा रहे हैं। अब यहाँ से जो बस चलेगी वो ट्विन टावर के लिए चलेगी। Take a photo. And another one, that is the ground level washroom. Ground level washroom. Branded building, branded things over there, and you can find the branded toilet. दोस्तों जिसलिए मलेशिया आते हैं तो यह वह इमारत आ चुकी है। देखिए, पेट्रोनस ट्विन टावर्स मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित 88 मंजिल यानी कि 88 मंजिल गगनचुंबी यह इमारत है। इसको 1998 में पूरा किया गया था और 2004 तक विश्व की सबसे ऊंची इमारत यानी कि 2004 तक यह विश्व की यानी कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत थी। टावरों की जो डिज़ाइन है इसमें इस्लामी वास्तुकला और पोस्ट मॉडर्न शैली का मिश्रण है। ये मलेशिया की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति की प्रतीक है। टूरिस्टों के लिए टावरों के बीच के पुल और 86वीं मंजिल पर अवलोकन डेक खुले हुए हैं और पेट्रोनस ट्विन टावर्स मलेशिया की राष्ट्रीय पहचान और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से दोस्तों एक है। दोस्तों ये जो मतलब KLCC ट्विन टावर है, जो ये मलेशिया का जो सुपर स्टार का दो मतलब या सुपर टाल का गगनचुंबी इमारतों की एक जोड़ी है और ये जुड़वा टावर में तो आज भी वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत है। अगर जुड़वा की बात करें तो ये जोड़ी है दोनों टावर्स की और जो 451.9 मीटर यानी कि 1483 फीट पर खड़ी है और जब तक वे ताइपे 101 के पूरा होने से आगे नहीं निकल गए। पेट्रोनस टावर दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा गगनचुंबी इमारत और 2019 तक वे मलेशिया की भी सबसे ऊंची इमारत रही। जब इन्हें दक्षिण एक्सचेंज यानी कि एक द एक्सचेंज है वहाँ पे 106 ने उसने पीछे छोड़ दिया था। और इसका थोड़ा सा मैं इतिहास और वास्तुकला बताता हूँ। जो पेट्रोनस टावर की संरचनात्मक प्रणाली यानी कि एक ट्यूब डिजाइन है जिसका आविष्कार यानी कि बांग्लादेशी और अमेरिकी वास्तुकार फजलुर रहमान खान ने किया था और अत्यधिक ऊंची इमारतों के लिए ट्यूब संरचना को लागू करना एक सामान्य घटना है। 88 मंजिल वाले जो टावर का निर्माण बड़े पैमाने पर जैसे प्रबलित कंक्रीट से किया गया, जिसमें स्टील और कांच का मतलब इसका जो आप देखोगे ना इसका कांच का मुखौटा है यानी कि इसका जो चेहरा है और जो इस्लामिक कला में जो पाए जाने वाले जो इनके रूपांकन होते हैं जो उनसे मिलता जुलता है और जो मलेशिया के मुस्लिम धर्म का प्रतिबंधी है यानी कि प्रतिबिंब भी है। और डिज़ाइन पर एक इस्लामी प्रभाव यह है कि टावरों का क्रॉस
सेक्शन है ना रूब अल हिज पर मतलब आधारित है। जबकि कार्यालय जो स्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोलाकार जो इसके गोलाकार ऊपर वो है उनको मतलब क्षेत्रों को आपस में जोड़ा गया। और ये मतलब गोलाकार है जो राउंड है जो इसका कुतुब मीनार के जो निचले हिस्से हैं उनके सम्मान ही इसको मतलब बनाया गया है। वैसे टावरों को इनको जो है अर्जेंटीना और अमेरिकी जो इंजीनियर थे जो सेसर पेली ने उसने इसको डिज़ाइन किया था। और मलेशिया के जो कुआलालंपुर के लिए 21वीं सदी का प्रतीक बनाने के लिए विशिष्ट यानी कि आधुनिक शैली को चुना गया था। भाई एक ये ऐसा हो कि जो आज तक कहीं पे भी ना हो। और इसका निर्माण है जो मान लो 93 में इसकी खुदाई शुरू करी थी, यानी कि 1993 में। और जिसको जो खुदाई करी जो इसकी सतह है यानी कि 30 मीटर 98 फीट नीचे खुदाई करने के लिए हर रात 500 ट्रक मिट्टी ले जाना शामिल था। अधिरचना का निर्माण 1 अप्रैल 1994 को शुरू हुआ और फर्नीचर के साथ अंदरूनी भाग में 1 जनवरी 96 को पूरा हुआ। टावर 1 और टावर 2 के शिखर यानी कि 1 मार्च 1996 को पूरे हुए। और इसके निर्माण जैसे इसको बनाने में 3 साल बाद और पेट्रोनोस कर्मियों का पहला बैच 1 जनवरी 1997 को यानी कि भवन में चला गया था। दोस्तों इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही मतलब एक सोचने लायक है। मतलब इसको बनाने में कितना उनकी लगन थी। इसमें बहुत सारी कंक्रीट स्टील बहुत कुछ इसमें शामिल किया गया। और ये इमारत आज मलेशिया की शान है। दोस्तों ट्विन टावर से मतलब कुछ घटनाएं भी हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। 15 अप्रैल 1999 को फेलिक्स बाउमगार्टर ने पेट्रोनोस टावर पर एक खिड़की की सफाई करने वाली क्रेन से कूदकर बेस जंपिंग का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था, लेकिन अब तो वह टूट चुका है। और 11 सितंबर के हमलों के बाद न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावरों को नष्ट करने के एक दिन बाद बम की धमकी के बाद 12 सितंबर 2001 को हज़ारों लोगों को निकाला गया था। और बम निरोधक दस्तों को टावर में कहीं विस्फोट नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेशर को खाली कराया। और जो मजदूर और दुकानदार वो 3 घंटे बाद दोपहर के आसपास जाने की अनुमति दी गई। निकासी के दौरान किसी को चोट भी नहीं आई। और 4 नवंबर 2005 की शाम को पेट्रोनोस टावर के नीचे सूर्या के LCC शॉपिंग सेंटर के सिनेमा कॉम्प्लेक्स में आग लग गई थी, जिससे ग्राहकों में दहशत फैल गई थी। और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। शॉपिंग मॉल सूर्या के LCC को छोड़कर इमारत से काफ़ी हद तक खाली थी, क्योंकि देर रात थी। इसमें केवल फिल्म देखने वाले और रेस्तरां में कुछ लोग खाने वाले लोग थे। और 11 यानी कि 1 सितंबर 2009 की सुबह फ्रांसीसी शहरी पर्वतारोही एलन स्पाइडरमैन रॉबर्ट केवल अपने नंगे हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टावर 2 के शीर्ष पर 2 घंटे से भी कम समय में चढ़ गया था, जबकि पिछले 2 प्रयासों में उसे गिरफ्तार किया गया था। और 20 मार्च 1997 को अपने पहले प्रयास में पुलिस ने उसे शिखर से 28 मंजिल दूर 60वीं मंजिल पर गिरफ्तार किया। और 20 मार्च 2007 को ठीक 10 साल बाद उसका दूसरा प्रयास भी उसी मंजिल पर रोक दिया गया, हालांकि दूसरे टावर पर था। और इसके जो एंकर हैं किराएदार हैं टावर 1 पर तो पूरी तरह से पेट्रोनोस और उसकी कई सहायक और सहयोगी कंपनियों का कब्जा है। यानी मैं बता दूं आपको पेट्रोनोस वहाँ की ऑयल कंपनी है मलेशिया की। जबकि टावर 2 में कार्यालय जो ऑफिस हैं ज़्यादातर अन्य कंपनियों के हैं जो पट्टे पर उपलब्ध हैं। और कई कंपनियों के लिए कार्यालय टावर 2 में हैं, जिनमें से सपूरा OMG, अपस्ट्रीम इंक, हुआई टेक्नोलॉजी, ABBA, अल जजीरा इंग्लिश और कैरगलिसी हेस, ब्लूमबर्ग, बोइंग, IBM और खजाना नेशनल, बरहाद, मैकिन्से कंपनी, विप्रो लिमिटेड, TCS, HCL टेक, कलर, माइक्रोसॉफ्ट, द एजेंसी और राइटर शामिल। मतलब इसमें बहुत सारे कंपनियों के ऑफिस आप देखोगे इसके अंदर। तो दोस्तों इसका अपना ही इस बिल्डिंग का अपना ही इतिहास है और इसके अंदर इतना बड़ा बाज़ार है कि आप थक जाओगे घूमते घूमते। इसके अंदर हर तरह के शोरूम
आपको हर चीज़ इसके अंदर उपलब्ध मिलेगी और चमचमाती हुई सारी की सारी शॉप है जो चमचमाती हुई आपको इसके अंदर से नज़र आएंगी। जब घूमोगे आपको दिल खुश हो जाएगा। हर तरह के शॉप हैं इसके अंदर और फूड के लिए भी बहुत सारी वैरायटियाँ इसके अंदर हैं। गेमिंग की हर तरह के आपको सामान इसके अंदर उपलब्ध होगा। बहुत ही बड़ा टावर है, 5-6 मंजिल तक इसमें सारा, जैसे हमारे यहाँ बिग बाजार का है ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारा, मतलब थक जाओगे आप चलते चलते, इतना लंबा और चौड़ा है ये, बहुत ही बड़ा है। आपका दिल खुश हो जाएगा इसमें शॉपिंग करते हुए। हर कंपनी का यहाँ पर आपको शोरूम मिलेगा और बहुत ही प्यारी जगह है और वर्ल्ड से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और इसके अंदर शॉपिंग करते हैं। इन टावर्स के लिए आजकल मलेशिया बहुत ही मशहूर है। जो भी टूरिस्ट मलेशिया में आता है तो इन टावर के दर्शन करता है, इनके साथ अपनी फ़ोटो लेता है, वीडियो बनाता है और बहुत ही प्यारी जगह है। दोस्तों ये फूड सेंटर है, इसमें हर कंपनी का आपको यहाँ पर आउटलेट मिलेगा और ये देखिए हर कंपनी का आप यहाँ से किसी भी प्रकार का फूड आप प्राप्त कर सकते हो, आपका जो भी दिल करे। और यहाँ हर अलग अलग इतने सारे काउंटर हैं, आप देखते चलते जाओगे, देखते जाओगे। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे फूड के लिए उपलब्ध है। दोस्तों पूरा दिन मलेशिया घूमने के बाद अब 6 बजे हम दोबारा से क्रूज़ पर आ गए हैं। ये सामने क्रूज़ खड़ा है और यही हमें फ़ायदा हुआ क्रूज़ के द्वारा जाने से, क्योंकि जो इनकी जिम्मेवारी होती है, जो बस हमें लेके गई थी पूरा दिन घुमाने के बावजूद, वह पूरे राइट टाइम 6 PM पे, यानी कि रात शाम के 6 बजे हमें क्रूज़ पर वापस छोड़ गए हैं वो। और अब हम क्रूज़ पे जा रहे हैं और दोस्तों शायद ये 7 बजे क्रूज़ दोबारा से मलेशिया से सिंगापुर के लिए चल पड़ेगा और इसीलिए ये टाइम की उपलब्धि थी कि बाउंड का टाइम वो 6 बजे तक आपको आना ही आना है। और ये इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस इनकी भेजी हुई थी तो वो राइट 6 बजे तक हमें वापस क्रूज़ पर ले आई है। और दोस्तों अब क्रूज़ पर जाते हैं और सुबह तक ये हमें सिंगापुर पहुंचा देगा और पूरी रात यहीं पे एंजॉय करते हैं। ये देखिए पानी का लेवल है और 40 आपने देखा होगा वहाँ तक पानी की गहराई तक ये नीचे क्रूज है और बाकी ऊपर बहुत ही बड़ा 19 मंजिला ड्रीम क्रूज है। अगली वीडियो इसी क्रूज के ऊपर है। दोस्तों तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? तो अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो पहली बार आए हैं, और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।